New dawn, new day in Pakistan cricket. With that, a lot of new stuff to discuss. Of course, matches हो रहे हो या ना हो रहे हो, पाकिस्तान क्रिकेट की जो एक्टिविटीज़ है, जो हैपनिंग्स है, वो चलती रहती हैं. New hirings, new appointments, sackings, everything goes hand in hand because we're gearing up for a very busy, very packed home season, and of course, following that, the ICC Champions Trophy and a lot of home international cricket and domestic cricket as well. So expect a lot going forward. हमने लास्ट शो में भी बात की थी कि वर्ल्ड कप के बाद जो चेंजेस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी आहिस्ता आहिस्ता रोल ऑन हो रही हैं. तो उनमें से ही एक चेंज के बारे में आज भी बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स अब हम women's cricket के बारे में भी बात करेंगे in the later half of the show. So thank you so much for tuning in and for staying with us. And before we move ahead towards discussing, अपने guests को quickly introduce कराऊं show में. Sports literati regular, sports expert and analyst Hassan Azam. Hassan, assalamu alaikum. Welcome to the show. Walaikum assalam. Pleasure to be here once again, and doesn't seem like a dull week in Pakistan cricket. There is never a dull week in Pakistan cricket. Absolutely. And that is why we're here every Thursday and Saturday from the studios live. And उनके साथ जी हमारे साथ आज हमारे बहुत special commentator, cricket expert, cricket analyst and broadcaster Ali Yunus has joined us. Ali, assalamu alaikum. Welcome to the show. Good to have you back on that seat. Walaikum assalam, and thank you for having me once again. And as you said, never a dull moment in Pakistan cricket. So I'm expecting lots of questions today. Lots of bounces coming आप दोनों की तरफ क्योंकि Get your helmet on, buddy. Gentlemen, start करते हैं एक बहुत लेटेस्ट जो न्यूज़ है जो इस वक्त अभी ब्रू हो रही है, कंफर्मेशंस में आने लग गई हैं उसकी. Waqar Younis has been brought in by Chairman PCB Mohsin Naqvi, and उनका जो likely role हमें नजर आ रहा है at the helm of Pakistan's cricketing affairs, which seems to focus a little bit on the selection, the high performance pathways, workload management, all of these things जिनका हम अपने last show में भी बहुत question marks के साथ discuss कर रहे थे. खास तौर पे जब हमने कुछ sackings जो हुई हैं recently, जब बड़े नामों को निकाल दिया गया पूरे सेटअप में से और हम देख रहे थे कि आगे जाते हुए ये रिप्लेसमेंट्स आएंगी या कोई नए नाम आएंगे. अब मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो देख रहे हैं टुवर्ड्स वकार यूनिस टू कम इन एंड टू हेल्प हिम हैंडल स्पेशली द क्रिकेटिंग एंड ऑफ द अफेयर्स. योर थॉट्स ऑन दिस अपॉइंटमेंट, बिकॉज इससे पहले हमने उनको एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में नहीं देखा. योर थॉट्स गोइंग फॉरवर्ड विद वकार यूनिस. I think initially it's a massive appointment. जिस तरह आपने कहा कि especially हमने देखा है कि in the past with somebody like Misbah-ul Haq who had the head coach and the chief selector role, then we had somebody like Wahab Riaz. So coming into this appointment, Waqar Younis, who's a legend not of just Pakistan cricket, one of the greatest to ever grace the game of cricket in the world, has come up with a massive role because there's so much going on. Just like आपने कहा कि it's not just about the selection, which he's going to look after as well with the Bangladesh series coming up in August. It's going to be about the pathways, the high performance center. It's going to be about how the domestic structure moves on forward from here. और स्पेशली जो आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर है उसको कैसे रन किया जाएगा. तो ऐसे इंडिविजुअल पे कोई भी इंडिविजुअल वो हो जिस पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लाते हैं, वो उनको चैलेंज होता है, उनको ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एंगल से वो चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं. तो आई थिंक इट्स अ मैसिव रोल फॉर हिम. I mean, how it's going to go, only time will tell. How it could shape up is definitely, I believe, I hope so, he gets the time he needs. It's a new role for him. He doesn't have any administrative experience at that level. But in terms of his credibility, I think it's all there. In terms of its experience, it's there. And I think, जैसे आपने कहा, मोहसिन नकवी चाह रहे थे कि वो थोड़ा administrative side पर आएं और cricketing affairs एक cricketer चलाए. And Waqar Younis is the choice we have in front of us from him. Right, and we'll take a look at his history with Pakistan cricket team as the head coach as well. But before we go towards that, Ali, you know him better than most of us, you know, as a person, as a professional, you know, as a brother. You have that insight on him going into this role. जैसे अभी हसन ने भी identify किया, एक तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है. और दूसरा, I don't think कि पाकिस्तान क्रिकेट में कभी ऐसा रोल जो है वो किसी प्लेयर को दिया गया है. अब पास्ट में भी ऐसा हुआ है कि we have seen these former cricketers being given these absolutely fresh titles like team director या senior team manager, या अगर आप और पास में जाए मिसबाह-उल हक की dual responsibilities.
तो हम देखते आए हैं कि फॉर्मर क्रिकेटर्स जिनकी एक बहुत शानदार एक रिच लेगेसी होती है उनको इतने इंपॉर्टेंट रोल्स दिए जाते हैं. योर थॉट्स एज समबडी हु हैज ऑफ कोर्स seen him go through various roles in his life, क्या लगता है इस रोल में वकार यूनुस अपना विजन कैसे लेके आएंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी होपफुल कि थिंग्स विल गेट बेटर अंडर हिम, क्योंकि इस बार कोई कोचिंग पोजीशन नहीं है. इट्स इन, जैसे अभी हसन ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज़्यादा है, जिसमें आपने सिर्फ और सिर्फ टीम को नहीं देखना है, आपने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट का हाल अहवाल देखना है, जिसमें वुमेन्स क्रिकेट भी इंक्लूडेड है, जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट भी इंक्लूडेड है, जिसमें अकेडमीज भी इंक्लूडेड है. सो ईच एंड एवरी क्रिकेटिंग अफेयर ऑफ पाकिस्तान विल बी लुक्ड आफ्टर वकार भाई. एंड आई डोंट थिंक सो कि एट द मोमेंट पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा बेहतर इंसान होगा इस पोजीशन के लिए. जैसे भी आपने कहा कि ये पोजीशन पहले कभी पाकिस्तान क्रिकेट में रही नहीं है. This is the first time that we are witnessing such a position. अभी तक जो टाइटल फ्लोट हो रहा है, एडवाइजर टू द चेयरमैन ऑन क्रिकेट affairs. Absolutely. Right? So एक basically एक consultant role है for now. Is that right? At the moment. अभी तक कुछ But we are looking at director of Pakistan cricket. That's what we are looking at. Probably after a few weeks you will hear that कि वो टीम डायरेक्टर या पाकिस्तान क्रिकेट डायरेक्टर के तौर पे आएंगे. जैसे रॉब की को हम देख रहे हैं कि इंग्लैंड की तरफ से वो रोल निभा रहे हैं, तो ऐसा ही कोई रोल हम वकार भाई की तरफ भी देख रहे होंगे. Probably in few weeks आप देखेंगे, क्योंकि अभी वो देख रहे हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि इट्स नॉट एन ईजी जॉब. बहुत बहुत बड़ा टास्क है ये, मैं तो कहूँगा बहुत बड़ा चैलेंज है ये वकार भाई के लिए. सबसे पहले तो उनको एक अच्छी टीम को क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसे लोगों को लेके आना पड़ेगा जो लाइक माइंडेड लोग होंगे, जो पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम करना चाहते होंगे. एंड देन द पाथवे, सबसे इंपॉर्टेंट अगेन नेक्स्ट वर्ड इज द पाथवे, कि आप नीचे से क्रिकेट जो अंडर 16, अंडर 19 एंड देन पाकिस्तान ने उसको कैसे आप आगे लेके चलते हैं टुवर्ड्स एकेडमीज. ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी. देखिए, पाकिस्तान टीम की अगर बात करें, वो तो एक बना बनाया प्रोडक्ट है. उसके लिए आपने जेसन गिलिस्पी को लिया है, आप गैरी कर्स्टन को लिया है, बट इनका रोल इज़ अ लिटिल डिफरेंट रोल, एंड जो थोड़ा बैक एंड वाला रोल है, जहाँ पे आप जो प्रोडक्ट बना के आप उनको देंगे, उस पर कैसे काम किया जाएगा, ये बेसिकली वकार भाई देखेंगे. और आई थिंक इससे बेहतर इस वक्त जिनको कमेंट्री में इंटरनेशनल एक्सपोजर है, आईपीएल में कोचिंग का एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान में हेड कोच का एक्सपीरियंस है, ऑस्ट्रेलिया में रहने का एक्सपीरियंस है, तो ही नो द लॉट्स ऑफ कल्चर्स. तो मेरा नहीं ख्याल कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी वकार भाई के लिए भी होगी, और इस पोजीशन के लिए कोई और बेहतर इंसान पाकिस्तान के पास हो सकता है. बिल्कुल. एंड आई थिंक मैक्रो लेवल पे आप बात कर रहे हैं कि उनका विजन भी वही होगा. उस लेवल पे इतना ज्यादा हैंड्स ऑन शायद वो नहीं रहेंगे विद द टीम. Is that what you're saying कि थोड़ा सा बैक एंड पे थोड़ा सा? देखिए, टीम के लिए तो आपके पास गैरी कर्स्टन और जेसन गिलिस्पी हो गए ना, वो तो आपको जो मेन आपकी टीम है वो ही हैंडल करेंगे. यस, जो उनको आपने प्रोडक्ट तैयार करके देने, जो प्लेयर्स तैयार करके देने, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वकार भाई की डेफिनेटली होगी कि किस तरीके से प्लेयर जो है तैयार होकर पाकिस्तान टीम तक पहुंच रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वकार भाई की होगी. चलिए, लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ हिज अचीवमेंट्स एज अ हेड कोच, सम ऑफ द डिसअपॉइंटमेंट, सम ऑफ बेसिकली पूरा अगर हम उनके स्टैट्स देखें हसन एज हेड कोच. अगर पहला जो उनका स्टेंट था 2011 से लेके 2012 तक, अ लॉट ऑफ मिक्स्ड रिजल्ट्स. इसमें कुछ अच्छे विन परसेंटेजेस भी देखने को नजर आ रहे हैं. इस तरह 2011 में T20s में पाकिस्तान डिड रियली वेल विद हिम एज कोच. व्हाट विल यू से लुकिंग बैक ऑन दीज स्टैट्स? डू दे गिव अ क्लियर पिक्चर, or do we really even need to be looking at coaching stats right now? I think it's more about, why we need to look at this or why we're looking at this is often your credibility, even if it's not in the same department, is created by what you've achieved somewhere else. So, sure. I mean, Waqar bhai, agar bowling coach or head coch is because of his performances in the cricketing world, we knew what he could deliver there. Yeah. Even though coaches is a completely different ball game, but we knew it was there with him. And that's how he came into this position. Maybe he'll give us a look at how he's sort of like developed or evolved even as a head coach, because he had 2 stints, and how we're looking he'll develop into this new position as well. Because देखें 2011 में he had a fantastic start to his coaching career as a head coach for Pakistan. But in 2012, because of a string of bad results, as you can see, win percentage across the formats kind of like dropped down, and that's the reason he resigned after his first coaching stint. और जहाँ तक ये पोजीशन की बात करें, देखें, with a position which has so much responsibility, it's always going to be a double-edged sword. There's always going to be criticism leveled at you. There's always going to be questions, more questions towards you because you have more responsibilities. लेकिन इस मामले में एक अच्छी चीज़ ये है कि he gets a clean slate in a way, right? जिस तरह अभी अली ने बात की, clean slate in the sense के the vision he has, he can develop a team to make sure that gets implemented.
Right, and how different do you think it is going to be? अगर हम उनका दूसरा कोचिंग स्टिंट भी देखें और वो भी डिस्कस करें, थोड़ा सा जरूर आप कहेंगे कि टेक अवेज हुए होंगे फ्रॉम दैट, बट जिस तरह हसन ने कहा कि बहुत डिफरेंट है ये रोल और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बट हाउ विल दैट एक्सपीरियंस एज अ हेड कोच हेल्प हिम कमिंग इनटू दिस न्यू रोल? देखिए, he knows in and out of Pakistan cricket. He's come through the system. वो उन्होंने department cricket भी खेली है, उन्होंने region cricket भी खेली है. So he knows each and everything about Pakistan cricket. He's played as a player. He's been in the team. He's been the head coach, the bowling coach. He's been a commentator also. So you name it. He's got all the experience that you need Pakistan cricket के लिए. तो I guess it's बेहतर हो नहीं सकता. अभी आपने record चलाया. I know second or third stint शायद इतना successful जो हम expect करते हैं coach से पाकिस्तानी उतना शायद नहीं होगा, बट विन परसेंटेज अगर अभी भी आप भी देखें तो 43%, 58% या 63%, इट्स नॉट बैड. बट बिकॉज कुछ और आउट ऑफ द फील्ड मसलों की वजह से प्रॉब्ली जो एक इमेज वकार भाई की बन चुकी हुई है कि ये बहुत सख्त हैं या प्लेयर्स के साथ नहीं बनते. भी मैं आपसे बात करना चाहूँगी, कितना ट्रूथ है इसको? इज ही रियली स्ट्रिक्ट, यू नो? I won't call him strict. I will call him dead honest actually. Okay. Because once you're honest with your job, तो आप फिर कुछ भी इधर उधर बर्दाश्त नहीं करते हैं जो आपकी टीम या आपकी जॉब को हर्ट करता है. तो because अब आप अगर मैं आपको थोड़ी सी पीछे लेके जाऊँ और आप 2009 की बात करें जब ये पहली बार आए थे, तो जब प्लेयर पावर पाकिस्तान में बहुत तगड़ी हुई है तब इनको लाया गया है. Because इनको जॉब पाकिस्तान से he is not greedy for a job. Because he's got a career, he's got a commentary career, he's earning probably more than what he will get from out of this. Yeah, Australia में कहीं भी making money or job is not a problem. It's the love for the country and the game that brings him back always to such jobs. But अगर मैं आपको वापस लेके जाऊँ तो जितने भी इनके tenures हुए, अगर आप उस tenure पे आने से पहले के हालात पाकिस्तान टीम के देखें, 2009-10 की बात करें तो it was रज़ाक भाई, यूसुफ भाई, शोएब मलिक एंड ऑल दैट प्लेयर पावर इन पावर जो जिसकी वजह से बहुत मसले थे, तो इनको लाया गया. देन 2014 अगैन उमर अकमल, अहमद शहजाद, शाहिद आफरीदी, दे वर द ट्रबल मेकर्स, जिसकी वजह से जब इनको लाया गया तो फिर आके एक दफ़ा सफाया होता है, टीम को क्लीन करके दोबारा से ये चला देते हैं. बिकॉज ही डजंट केयर अबाउट कि इनको दोबारा काम करना है या उनको नौकरी चाहिए, तो ये इतनी ऑनेस्टी से काम करते हैं दैट इट डजंट नीड टू मेक इट वो जो एक हमारे क्रिकेट में होती है चापलूसी टाइप. वो नहीं करते. So you're saying कि इस वक्त क्लीन अप रिक्वायर्ड है. अगेन सिचुएशन आपके सामने है, आपका डेडलॉक आया हुआ है, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं साइन हो पा रहे हैं, आपकी जितनी लड़ाइयां हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप में, जो खबरें हम सुन रहे हैं, मसले तो चल रहे हैं. But doesn't that often lead to power clashes? I mean, do you see that happening once again when he will take charge? Head coach के tenure में तो definitely there were a lot of there was so much music around this. Maybe there have been a lot of power clashes, personality clashes, and maybe Waqar Younis, the coach, hasn't been able to separate himself from Waqar Younis, the bowler, maybe. And there have been a lot of things, जो कुछ rumors भी हैं, कुछ इतना शायद truth नहीं है. अभी भी आपको लगता है कि उस तरफ चीजें जा सकती हैं, या will he be a little further away from that environment? देखिए, एक सबसे पहले डायरेक्ट प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन नहीं है आपकी. इनका रोल इज डिफरेंट. ही इज लुकिंग एट लार्जर थिंग्स रादर देन एक टीम वाला रोल से इज. इसलिए डायरेक्ट इंटरेक्शन डेफिनेटली नहीं होगी टीम के साथ. तो एक वो तो आपको शक निकाल देना चाहिए कि प्लेयर्स के साथ इंटरेक्शन होगा. एंड सेकेंडली, अब ये जो लड़के हैं, ये दे वे टू जूनियर फ्रॉम वकार भाई. देर लाइक जैसे अजान है हमारे लिए, अब उसी एज ग्रुप के हैं सारे ही जो अब लड़के खेल रहे हैं. इफ यू टॉक अबाउट शाहीन, नसीम या बाबर, दे वे टू जूनियर. तो उनका ऐसा मसला होना नहीं चाहिए. तो इनको एक तो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये चीज़ है. एंड देन द एज गैप, मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसा वैसा कोई भी. एंड ही इज लर्नड हिज लेसन कि आपने अगर पाकिस्तान में काम करना है, इस कल्चर में काम करना है, तो आपको थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होकर काम करना पड़ता है. बट अगेन, इफ़ यू वांट रिजल्ट्स, इफ़ यू वांट थोड़ा सा सख्ती वाला काम और आप क्लीन अप चाहिए, तो डिप्लोमेसी से काम हो नहीं पाएगा. Your thoughts, Hassan, on this? Because Ali has very clearly stated कि क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं फ्रॉम वकार यूनिस इन दिस टेन्योर. क्लीन अप की जरूरत है, डायनामिक ऑफ पावर थोड़ा सा अनबैलेंस्ड. आप एग्री करते हैं इस बात से? I think coming into a role like this, जिस तरह उन्होंने कहा, डिप्लोमेसी बड़ा कीवर्ड था, because you have to be a diplomatic person, because you're going to be working with so many different departments and making them come to the same point. And everybody looks up to him. Everybody respects him. Absolutely. He is such a star. He is such a presence that you cannot help but sort of agree with what he has in mind in his vision, and you want to root for him. Absolutely. And I mean, as I said before, he's one of the greatest to ever grace the game of cricket, not just in Pakistan cricket, but world cricket. I mean, that's the aura he has internationally.
But in terms of this administrative role, in terms of the responsibilities he's going to have, I mean, as a commentator as well, that's a good thing because players की NOCs के मामलात भी इन्होंने देखने हैं. Yeah. So that's a good thing that he gets to do that everywhere. Then he gets to see how different players evolve playing around the world when they end up playing for their national side or international sides. That's going to help cricketers as well. In terms of workload management, he's been somebody who's done that himself. In terms of what he talked about, जैसा अली ने बात की जो controversies से वो निकले हैं, जो उनके tenures में controversies रही हैं या जो चीजें attach रही हैं, I think that's going to help him evolve into a better administrator overall. But the challenges he faces are, they need dire attention. That's the problem. I mean, some of the things Ali regularly काम करते हैं Pakistan domestic cricket में as a commentator. I mean, he would know better than anybody else. I think he's got the ear as well, which is going to make a difference. And we now. did हमारे last show में we did talk about those some of those issues जो आप दोनों ने highlight किए थे बहुत अच्छी तरह से. और domestic के ऊपर भी अली आपको क्या लगता है कि key areas कहाँ पे हैं जहाँ पे बेहतरी आ सकती है now that somebody like Waqar Younis who has had so much of playing experience, commentating experience, as a cricketer he has seen it all. कहाँ पे बेहतरी ला सकते हैं वो? देखिए अभी तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत होगी. जो सबसे चीज़ मुझे अनॉय करती है कि हमारी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो सिर्फ 2 से 3 स्टेशंस पे होती है. आपको वैरायटी नहीं मिलती है प्लेयर्स को खेलने के लिए. वही पिचेस है, या नेशनल स्टेडियम कराची में क्रिकेट होगी या कजाफी स्टेडियम होगी, या बहुत आप हाथ छलांग मारेंगे तो आप पिंडी स्टेडियम में आपका नेशनल T20 हो जाएगा या हादा पार्ट उसका मुल्तान में हो जाएगी. इन 4 स्टेशन के अलावा आप कहीं क्रिकेट खेलते ही नहीं हैं. तो वो जो डिफरेंट इन्वायरमेंट की आप बात करते हैं, डिफरेंट कंडीशंस की आप बात करते हैं, आप अपने मुल्क में ही एक वो जो ग्रूमिंग एज के अंदर आप लड़के को डिफरेंट कंडीशंस दे ही नहीं रहे हैं. आई रिमेंबर नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर जब 2 साल पहले टूर्नामेंट हुआ था, सारे मैचेस उसी जगह पे हुए थे. जब फाइनल आया था तो बॉल आप घुटने से ऊपर आ ही नहीं रहा था क्योंकि वो जो पिचेस थी वो इतनी थक चुकी थी क्रिकेट हो के. देन वुमेन्स क्रिकेट भी उन्हीं पिचेस के ऊपर हो रही है, आपकी डोमेस्टिक भी अगर कोई इंटरनेशनल मैच आ गया वो भी उन्हीं पिचेस के ऊपर हो रहा है. और आई थिंक एक चीज़ तो जो मुझे लगता है वो सबसे पहले करनी चाहिए कि आपको बाकी डिफरेंट स्टेशन खोलने चाहिए. आई रिमेंबर जब हम छोटे थे तो बहावलपुर भी क्रिकेट हुआ करती थी, सियालकोट रेगुलरली क्रिकेट हुआ करती थी, शेखुपुरा में क्रिकेट हुआ करती थी, जहाँ के हर डिफरेंट ग्राउंड की डिफरेंट पिच हुआ करती थी. बहावलपुर में टर्नर होता था बहुत बड़ा जहाँ पे आप खेलते थे तो आपको स्पिन खेलना आता था. गुजरांवाला में होती थी. इवन सियालकोट का बहुत अच्छा पिच होता, बाउंसी पिच हुआ करता था, जो कि आप वहाँ पे क्रिकेट आपको होती नहीं. तो सबसे पहले फिर आपको दूसरा चैलेंज आएगा कि आपने कौन से बॉल से क्रिकेट खेलनी है. आपने डूक से खेलना है, आपने कुकोबरा से खेलना है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल क्रिकेट से भी आपको वो गैप भी कम करना है. एक वो भी चैलेंज होगा, किस मौसम में खेलना है. ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं. बट ये एक क्रिकेटर ही जब एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल पे बैठेगा वो आपको बेहतर तरीके से जज कर सकेगा कि कौन सी ये छोटी चीज़ें जो कि एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकती हैं.